پی ٹی آئی حکومت نے 24,000 ارب قرض لیا، کوئی نئی اینٹ نہیں لگی۔ وزیراعظم کا عبد الشام میں خطاب، سابق حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لیے گئے، کام کچھ نہیں ہوا۔ پشاور بی آر ٹی چلتی اور جلتی رہی، تقریروں میں غداری وفاداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ 4 سال میں انتہائی کرپشن اور نالائکی دیکھنے میں آئی۔ تیل گیس وقت پر نہ منگوانے پر معیشت کا بھٹا بیٹھ گیا۔ اب محنت اور خون پسینہ ایک کرنے سے ہمارا بھکاری پن ختم ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں آٹا پنجاب کی قیمت پر دینے کا اعلان بھی کیا۔ 4 سال جو شخص اسی عہدے پر قائم تھا، دن رات قوم کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، ورغلایا، اب اپنی تقریروں میں 4 سالہ کارکردگی کی ایک بات نہیں کرتا کہ مجھ کے پلے ہے کچھ نہیں۔ لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ میں سویا رہا اور یہ غریب عوام تڑپتی رہی۔ ایسا نہیں ہوگا، شہباز شریف جاگے گا اور آپ سوئیں گے اور آپ آرام سے سوئیں گے انشاءاللہ۔ سستا آٹا مہیا کرنے کا طریقہ آتا ہے، جو قیمت کل اور پرسوں پنجاب میں ہوگی وہی قیمت کے پی کے میں ہوگی انشاءاللہ۔ میں درخواست کروں گا چیف منسٹر صاحب سے کہ یہی قیمت رکھیں، نہیں رکھیں گے تو پھر میں اپنے کپڑے بیچوں گا اور آپ کو میں آٹا مہیا کروں گا۔ دن رات انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اپنی جان لڑا دیں گے، پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کے پی کے ہزاروں لاکھوں جو مریض ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ان کے فری علاج کے لیے شہباز شریف انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور یہ علاج ہم فری بنا کے دیں گے انشاءاللہ۔ عمران خان نے خودکش بمبار کی جیکٹ پہن رکھی ہے۔ اگر سپریم کورٹ رات کو نہ کھلتی تو یہ ملک بنانا ریپبلک بنا دیتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے فیصل آباد میں سابق وزیر اعظم پر وار کہتے ہیں یہ ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ آٹا چینی ادویات چوری کا حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے، کسی کو سسٹم خراب نہیں کرنے دیں گے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے والے ہیں۔ یہ جو تماشا 1 مہینے لگا رہا ہے، اگر سپریم کورٹ اس دن نہ کھلتا تو یہ ملک آج بنانا ریپبلک ہوتا۔ یہ شخص جس کا نام عمران نیازی ہے، یہ خودکش جیکٹ پہنے ہوئے ہے اور یہ خودکش بمبار بن کر سسٹم پر گرنا چاہتا ہے۔ انتقام پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن اگر چینی میں، آٹے میں، دوائیوں کے سکینڈل میں پاکستانی عوام کی اور بالخصوص پنجاب کی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس کا حساب تو لینا ہمارا ذمہ داری ہے۔ سسٹم کو خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ بہت ہنگامی بنیادوں پر وہ اقدامات کرنے جا رہے ہیں جس سے عوام کو ریلیف ملے، چاہے وہ گڈ گورننس ہے، چاہے وہ اشیاء خورد و نوش ہیں، اور اس پہ ہم پہرا دیں۔ امریکہ کو پاکستان میں آزاد حکومت کی عادت نہیں، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا اوورسیز پاکستانیوں سے ورچوئل خطاب، کہتے ہیں کبھی بھی امریکہ یا یورپ کا مخالف نہیں رہا۔ امریکہ کو عادت ہے کہ جو بات پاکستان سے منوانی ہوتی تو اس پر یہاں سیلوٹ مارا جاتا۔ امریکہ کا کیا کام ہمارے ان لوگوں سے ملے جو ہم سے خوش نہیں تھے۔ میڈیا پر طنز کرتے ہوئے کہا مہنگائی بڑھ رہی ہے، اب کیوں نہیں تنقید کرتے۔ میں کبھی بھی اینٹی امریکن نہیں رہا، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے پاکستان کی، امریکنز کی میں بات کر رہا ہوں۔ جو بھی پاکستان سے بات منوانی ہو، حکم ہوتا تھا اور یہاں سلوٹ مارا جاتا تھا، ہر ان کی خواہش پوری کی جاتی تھی۔ امبیسڈر نے خود کنفرم کیا کہ کس طرح کی دھمکی دی گئی تھی۔ اب تو کلیئر ہو گیا سب کچھ۔ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ ساری قوم اکٹھی ہو گئی ہے ایک چیز کے اوپر کہ غلامی نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ پاکستان کا کرپٹ ترین مافیا کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کر دیا۔ شہباز شریف کے اوپر 40 ارب روپے کے انڈر ٹرائل کیسز ہیں، انکوائری سٹیج پہ کیسز ہیں، اور نواز شریف اور اس کی بیٹی کنوکٹ ہو چکے ہیں۔ امیجن کرو جس کے نیچے انٹیریئر منسٹری ہے، ان کا اپنا وزیر نون لیگ کا کہتا ہے اس نے 18 قتل کیے ہوں۔ شیخ رشید کے بھتیجے کو انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دی۔ کرمنلز کی حکومت دنیا کے کسی حصے میں جدھر پاکستانی یہ حکومت کے لوگ چلیں، ان کو 2 نعرے لگیں گے ہر جگہ، غدار اور چور۔ میں آج پوچھتا ہوں میڈیا سے کدھر گئی مہنگائی؟ اب ہمارے دور سے اب تو ریکارڈ مہنگائی پہنچ گئی ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اب کیوں نہیں مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس جا رہے جی کہ بتائیں جی کیا حالات ہے؟ 20 تاریخ کے بعد کال دوں گا اسلام آباد کی۔
हुकूमत बदलते ही महंगाई का तूफान आ गया। पंजाब में आटा 10 रुपए किलो महंगा हो गया। 10 किलो आटे की कीमत 110 रुपए बढ़ गई। 20 किलो का थैला 210 रुपए महंगा कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफा। दाल माश और दाल मूंग 10 रुपए किलो महंगी। कुकिंग ऑयल और बेसन की कीमत में भी 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। मुल्क भर में मुर्गी का गोश्त मजीद महंगा कर दिया गया। महंगाई का नया तूफान, अवाम बेहाल। पंजाब में आटा 10 रुपए फी किलो महंगा हो गया। 20 किलोग्राम आटे का थैला 210 रुपए इजाफे से 1100 रुपए से बढ़ाकर 1310 रुपए कर दिया गया। फ्लावर मिल्स मालिकान कहते हैं मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ने से आटे की कीमत बढ़ानी पड़ी। फैसलाबाद में मुर्गी का गोश्त एक हफ्ते में 165 रुपए और एक रोज में 52 रुपए महंगा हुआ। चीनी वो महंगी, हर एक चीज़ महंगी है। इससे तो पहले वाली हुकूमत अच्छी थी जो चीज़ें तो रिलीज तो देती थी ना। बिजली महंगी होगी 3 रुपए यूनिट और आटा महंगा कर दिया 10 रुपए किलो, बहुत ज़्यादा महंगाई है। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। दाल माश और दाल मूंग 10 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई। बेसन की कीमत फी किलो 20 रुपए बढ़ा दी गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स का कुकिंग ऑयल 20 रुपए तक फी लीटर। यूटिलिटी स्टोर्स पर 950 ग्राम चाय की पत्ती 67 रुपए तक महंगी कर दी गई। कोयटा में गुज़िश्ता 3 दिनों में मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो में 250 रुपए का इजाफा हो गया। अचानक इजाफे से शहरी परेशान हैं। इसी बारे में मज़ीद बताएंगे असमत अमान समलानी। कोयटा में रमजान से जारी महंगाई को ईद के दिनों में मजीद पर लग गए। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे पर शहरी पट पड़े। अभी जब आए अचानक देखा कि यार एकदम इतनी महंगी मुर्गी 650 रुपए फी किलो। अभी बंदा परेशान है। अभी हम गरीब बंदे हैं, रेडी चलाने वाले, 500-600 रुपए कमाने वाले। अभी मेहमान आ गए हैं तो 1 किलो मुर्गी लेने के लिए भी हम परेशान हैं। मुर्गी डीलर और दुकानदार कहते हैं ईद के दिनों में तलब के मुकाबले में रसद में कमी के बायस मुर्गी गोश्त की कीमतों में इजाफा हुआ है। ऐसे मुर्गी महंगी हुई, कोई ड्राइवर हजरात हमारे जाते नहीं है और उधर भी मुर्गी शार्ट है। पंजाब में भी महंगी है, इधर भी महंगी है। कोयटा में ईद के दिनों में मुर्गी गोश्त फी किलो 250 रुपए इजाफे के साथ अब ये 650 रुपए तक फरोख्त होने लगा है। कैमरामैन यासीन खान के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। ब्रायलर की कीमत ने सार्फिन के होश उड़ा दिए। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 458 रुपए फी किलो हो गया। शहरी कहते हैं अब मुर्गी का गोश्त भी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका। इसी हवाले से मजीद उनका क्या कहना है बता रहे हैं मियां इम्तियाज अली। जी बताइएगा। जी लाहौर में मुर्गी की कीमत को जो है वो पर लगे हुए हैं। गुज़श्ता चंद रोज़ के अंदर कई बार जो है वो मुर्गी की कीमत में इजाफा हुआ उसके गोश्त में, और गुज़श्ता रोज़ का जो रेट है वो 476 रुपये के फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो लाहौर के अंदर मुर्गी का गोश्त जो है वो फ़रोख्त होता रहा। लेकिन आज जो है वो 18 रुपये मुर्गी के गोश्त की कीमत में जो है वो कमी आ गई है और 458 रुपये के हिसाब से आज का रेट जो है वो निकाला गया है। मेरे साथ यहाँ पर मैं टोलेंटन मार्केट में मौजूद हूँ। ये लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर ख़रीदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये कीमतें बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी हैं और आज कुछ कम हुई हैं। सर जी ये ईद की वजह से जो फार्मर हजरात है ना, उन लोगों ने जानबूझकर माल नहीं उठाने दिया। जो गाड़ियाँ जाती हैं फार्मों पे तो वो ऐसे करते हैं कि 20-25 गाड़ी मंगवा ली, 3-4 को माल दे दिया। मार्केट में जब माल कम आएगा तो रेट बढ़ जाएगा। दूसरे दिन देखो आप लोग देखें 20-20 रुपये 25-25 रुपये में रेट में फ़र्क होता है। रात को आज देखो 16-17 रुपये जिंदा मगरू में फ़र्क पड़ गया है। आज जो मार्केट चल रही है वो 295-90 रुपये चल रही है जिंदा माल जो है। बिल्कुल देखें जिस तरह आज मुर्गी के गोश्त की कीमत में जो है वो कमी हुई है और आज सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में हो चुकी है, जिसकी वजह से 18 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो गोश्त में कमी आई है। और यहाँ पर जो ज़िम्मेदारान हैं उनका ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ के अंदर इसकी कीमत में मज़ीद कमी वाक़या होगी। मरकज़ी रहनुमा मुस्लिम लीग काफ मौनी सिलाही की वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद। मुर्गी की कीमत बढ़ने पर मौनी सिलाही ने तनकीदी ट्वीट कर दिया। कहते हैं हमजा शहबाज के जाली वज़ीर आला बनते ही मुर्गी का रेट बढ़ गया है। मरकज़ी रहनुमा मुस्लिम लीग काफ मौनी सिलाही की वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद। मुर्गी की कीमत बढ़ने पर मौनी सिलाही ने तनकीदी ट्वीट किया। कहते हैं हमजा शहबाज के जाली वज़ीर आला बनते ही मुर्गी का रेट बढ़ गया है।
सिंध और पंजाब में पानी का बहरान, ज़रूरी पानी ना मिलने के बायस फसलें मुतासिर होने लगी। ठट्ठा, नौशेर फेरोज, मुल्तान और दीगर इलाकों में काश्तकारों के मुजाहरे। टंडुवाला यार्ड में काश्तकारों ने खुश्क घास मुंह में रखकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुतासरीन का इस हवाले से ये भी कहना था, फसलें पहले ही खुश्क हो रही हैं, अब पीने को पानी भी मुयस्सर नहीं। साडा हक एथेरक। सिंध और पंजाब में हर जगह पानी की दुहाई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, उम्मीद है विफाकी हुकूमत से हमें पानी के मामले पर इंसाफ मिलेगा। और जब पानी ज्यादा होता है ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं होता। तो हमें 2011 में भी पानी की कोई कमी नहीं थी, 12 में भी नहीं थी। फिर जो शॉर्टेजेस के साल आते हैं उसमें ये प्रॉब्लम हमेशा आता है। सिंध के बेशतर इलाकों में ज़रूरी पानी की किल्लत है। नौशहर फेरोज में शहरियों और किसानों ने रोहड़ी केनाल पर धरना दिया। उन्होंने कहा, पानी की किल्लत के बायस खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं। बुकेरानी सब डिवीजन को पानी दो, बुकेरानी सब डिवीजन को पानी दो। टंडुवाला यार्ड पानी की मसनूई किल्लत के खिलाफ आबादकारों ने अनोखा एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने खुश्क घास मुंह में रखकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उन्होंने कहा, अब तो पीने का पानी तक दस्तयाब नहीं। हजारों एकड़ काश्त होती थी कपास की, जो इस साल 1 एकड़ भी नहीं हो सकी है। तो आगे चलकर कपास का इंतहाई बहरान होगा। ठट्ठा समेत साहली इलाकों केटी बंदर, घोड़ाबारी, मीरपुर साकरों में भी पानी का बहरान है। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। उधर हैदराबाद में कोटरी बैराज से पानी के इखराज में कमी के बाद शहरी पीने के पानी और किसान ज़रूरी पानी से महरूम हैं। मुल्तान में भी काश्तकारों ने ज़रूरी पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि बंदबोसन नहर से मुल्हिका नालों में पानी फराहम नहीं किया जा रहा। पानी की किल्लत से आम के बागात मुतासर होने का खदशा है। और सिंध पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहता है। वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है कि PTI के दौरे हुकूमत में भी कभी भी पानी की तकसीम मुनसिफाना नहीं हुई। फवाद चौधरी के बयान पर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध किसी सूरत पंजाब का पानी नहीं चाहता, बल्कि अपना जायज़ हक मांगता है। PTI के दौर में भी अगर हम पानी की बात करते थे तो हमें सुबायत का ताना दिया जाता था। आज खुद PTI पानी पर पंजाब यानी सुबायत की सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि आज सिंध को 40% पानी की कमी का भी सामना है। मौसमियाती तब्दीली के असरात पाकिस्तान में सामने आने लगे। हुंजा का शशपेर ग्लेशियर फट गया। ग्लेशियर फटने से हुंजा का अहम तरीन हसनाबाद पुल टूट गया। सयाहों और मुकामी अफराद को नगर के मुतबादिल रास्ते से सफ़र करने की हिदायत की गई। महकमा मौसमियात ने पहले ही दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से शशपेर ग्लेशियर की झील का आउटब्रस्ट होने का खदशा जाहिर किया था। गिलगित बल्तिस्तान में शशपेर ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल। हुंजा और गिलगित को मिलाने वाला हसनाबाद पुल टूटकर बिखरे पानी में जा गिरा। दोनों अहम इलाकों का राब्ता मुनक़ते। सयाहों और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। शेराबाद साइड पर कुराकरम हाईवे के कटाव में इजाफा। जिले इंतजामिया ने ट्रैफिक को जिला नगर से मुतबादिल रास्ते पर मोड़ दिया। जराये के मुताबिक 4000 क्यूसेक पानी गुजरा। हुंजा में शाहराह कुराकरम पर बनाई जाने वाली हिफाजती दीवार भी पानी की जद में आ चुकी है। ट्रांसपोर्ट बंद कराने पर रश ही रश। ट्रांसपोर्टर्स को मुतबादिल रोड सास वैली ता मुर्तजाबाद से जाने की हिदायत। मुकामी इदारों के मुताबिक गर्मी की शिद्दत में इजाफे से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। PTI के मुनहरिफ रुकन की तीसरी बीवी पे मुनहरिफ खुला का दावा दायर करते दानिया शाह ने इल्ज़ामात की बौछार कर दी। आमिर लियाकत को नफ्सियाती और जालिम तरीन करार दे दिया। कहती हैं, आमिर लियाकत ने नशे में मारा पीटा, संगीन नताइज की धमकियाँ दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अदालत ने आमिर लियाकत को, और आपको ये भी बताएं कि अदालत ने आमिर लियाकत को 7 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। आमिर लियाकत ने दानिया के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं, अदालत से नोटिस वसूली पर जवाब दूंगा। नशे और तशद्दुद के इल्ज़ामात भी झूठे करार दे दिए। 1, 2, 3 शादियां नाकाम। आमिर लियाकत की तीसरी शादी भी ना चल सकी। दानिया शाह ने संगीन इल्जामात के साथ खुला का दावा दायर कर दिया। चुप रहने दो, चुप रहने दो, चुप। और तुम भी चुप। बहावलपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तनसीख निकाह का केस दायर कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि आमिर लियाकत अय्याश आदमी है, नशे में तशद्दुद करता है।
अदालत तंजीह निकाह की डिग्री जारी करे, हक महर की मद में 11 करोड़ रुपए घर और जेवरात अदा करने का भी हुक्म दिया जाए। अदालत 1 लाख रुपए खर्चा नान नफका भी मुकर्रर करे। दानिया शाह की वालिदा सलमा बीबी के भी आमिर लियाकत पर इल्जामात। कहती हैं, मेरी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाता था, कैद करके रखता था। ये खुद भी नशा करता है, हमारी बेटी से भी नशा करवाया, फिर भी हमने 3 महीने रखा अपनी बेटी को। 3 महीने ये मारता रहा, पीटता रहा, वो वहाँ से रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। हमने कहा वक्त का इंतज़ार करो, ये ना हो कि ये तुम्हें एक दिन आखिर इसने ये पिस्टल उठा लिया, इसके दिमाग पे रखा। वालिदा दानिया शाह के इल्जामात पर आमिर लियाकत का जवाबी ट्वीट। कहते हैं, नशा नहीं करता, नशे और आइस के इल्जामात बेबुनियाद हैं। नोटिस मौसूल हो जाए तो तमाम इल्जामात का जवाब दूंगा। चुप रहने दो, चुप रहने दो, चुप। दानिया 4 माह में ज्यादा वक्त तो बहावलपुर में ही रही। इल्जामात झूठे हैं। सैयद होने का भी दानिया और उसके वालिद ने मुझसे झूठ बोला। दानिया शाह के आमिर लियाकत पर जुल्म सितम के इल्जामात। कहती हैं, आमिर लियाकत का दिमागी तवाज़ुन खराब हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि तशद्दुद करता था, नशा करता था, कैद करके रखता था। वो नशे करता था और गंदी गंदी बातें करता था, नौकरों के सामने इज्जत भी नहीं करता था। 2-3 बार मारा भी है। बहुत ज़्यादा धमकी दे रहे हैं। लड़की को इज्जत की ज़रूरत होती है। मैंने सिर्फ उसे इज्जत मांगी है। मुझे मीडिया में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई शौक़ नहीं है। मैं बस चाहती हूँ मेरी खुला हो जाए, मेरे डिवोर्स हो जाए, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। मेरे पास सब प्रूफ हैं, वक्त पे मैं दिखाऊंगी। अभी उसने इंस्टा पे इतनी गंदी बात की है, फिर मैं गलत हो रही थी तो मुझे याद ही क्यों की थी उसने। एबटाबाद आज शाम मैं आपके पास आ रहा हूँ। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का एबटाबाद जलसे के हवाले से अवाम के नाम पैगाम कहा। चाहता हूँ कि एबटाबाद जलसे में अवाम भरपूर शिरकत करें। 20 मई के बाद इस्लामाबाद जाने की कॉल दूंगा। मदीना में होने वाले वाक़े ने इमरान खान को बेनकाब कर दिया। नून लीगी रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट का कहना है, इमरान खान का मार्च सिर्फ गोगी बचाओ मार्च है। इमरान खान खुद फराह गोगी के दिफा में बोले, मदीना में जो कुछ किया गया वो एक प्लानिंग के तहत किया गया। प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू करते हुए कहा। रहनुमा PTI शौकत बस्ता ने यह भी कहा कि फराह गोगी के खिलाफ कोई सबूत है तो सामने लाएं, किसी की किरदार खुशी ना करें, सबूत दें और पकड़ लें। मदीना वाक़े में मुलव्वस अफराद को सज़ा मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा, मदीना वाक़े की इमरान खान ने मजम्मत तक नहीं की। फराह गोगी प्रॉपर्टी का काम करती रहीं, आवाम को अंडे मुर्गियों पर लगा दिया। ये जो आलमी साजिश का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल लोगों को कोशिश कर रहे हैं ये बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन लोग गोगी बचाओ तहरीक के लिए अब और बाहर आने वाले नहीं है। रोज़ा रसूल के ऊपर इन लोगों ने एक प्लान साजिश की। रियासत मदीना का जो कार्ड ये खेल रहे थे वो लोगों के सामने खुद आ गया। गोगी होवे, गोगा होवे, मकसूद चपड़ासी हो, टीटी वाला हो, पापड़ वाला हो, कोई भी हो, इवन शौकत बसरा हो, हिना हो या इमरान खान खुद क्यों ना हो, गल्ला ना करना। अगर इनके पास कुछ सबूत हैं तो कौम के सामने रखें। जिस किसी ने उस मस्जिद नबवी के वाक़े की प्लानिंग की है, मंसूबा साजी की है, मैं लाइव आपके प्रोग्राम में कर रहा हूँ, अल्लाह ताला उसको, उसके ख़ानदान को, उसकी औलाद को दुनिया में और आखिरत में गारत कर दे। और अगर कोई झूठ बोल रहा है तो आए फिर भी सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको, उसके खानदान को, उसकी औलाद को आखिर में गारत कर दे। जिन लोगों ने किया, शदीद मजम्मत है। मस्जिद नबवी जैसी जगह पर 2 शख्स भी उसने किया, खुदा उसका जो है वो खुद ही उससे बदलेगा। यहाँ पर गलती किसकी है? पॉलिटिकल लीडरशिप होती है। वो अगर ट्वीट कर देते और इस चीज को टोटली सख्ती से कंडेम करते, इधर उधर की बातें करते हैं, फिर हमें शक होता है। PDM के सरबराह और जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने 19 मई को मज़ार कायद पर तारीख साथ जलसा आम का ऐलान कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सोमरू ने JUI कराची के तमाम अजला के ज़िम्मेदारान को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि जलसा आम की कामयाबी के लिए भरपूर तैयारियों का आगाज़ करें। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम माजी में शहर कायद में अवामी इज्तिमात का रिकॉर्ड तोड़ेगी।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि इमरान खान अपने करप्शन स्कैंडल से तवज्जो हटाने के लिए सियासी इंतशार पैदा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इंतशार फैलाने की किसी को इजाज़त नहीं देगी। MQM ने गवर्नर सिंध के लिए वफाकी हुकूमत को नाम दिए हैं। शर्जील मेमन ने मज़ीद कहा, कराची को तोहफा देने जा रहे हैं, ऑरेंज लाइन पर दिन रात काम करेंगे। वज़ीर मेहनत व इफरादी क़ुव्वत सिंध सईद गनी ने इमरान खान को मुल्क के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर अदलिया, अफवाज और दीगर इदारों ने अपना आईनी किरदार अदा किया तो इसे सराहना चाहिए। इस मरतबा एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रही। तो खान साहब इस वक्त जो है वो मुल्क में इंतशार चाहते हैं, कहते हैं कि जी अगर मैं नहीं हुकूमत में तो वो कोई और भी हुकूमत में ना हो। कल खान साहब ने फरमाया कि जितने भी मुनरिफ अराकीन हैं कहीं पे भी नजर आए तो उनको इबरतनाक बनाओ। आपने पंजाब में PMLN के MPA से मुलाकातें की थी, जिसकी तस्वीर अखबारों में छपी थी। आपने बन्नी गाला में PMLN के MPA से मुलाकातें की थी। हर काम वो पहले करते खुद हैं। इमरान खान को हटाते वक्त इस मुल्क के आइन को एग्जैक्टली मिनिमम फॉलो किया गया है। वो इस मुल्क के इदारों को टारगेट बना रहा है, इस मुल्क के आइन को टारगेट बना रहा है। ये या सिविल वार करवाना चाहता है या लोगों को लड़ाना चाहता है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वजाहत की है कि FI ने हुकूमत की इजाज़त के बगैर पीका एक्ट 2016 से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की है। ये पटिशन फौरी तौर पर वापस ली जा रही है। ट्वीट में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म और मुझे कुछ देर पहले मालूम हुआ कि FI ने एक्ट के सेक्शन 20 को बहाल कराने की पटिशन दायर की। ये पटिशन फौरी तौर पर वापस ली जा रही है। यह हुकूमत की बयान करदा पॉलिसी और आज़ादी इजहार को यकीनी बनाने के उसूल के खिलाफ है। वज़ीर आज़म ने इस पटिशन के दायर होने का सख्त नोटिस लिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, मौजूदा और साबिका हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं। 10 अप्रैल को निज़ाम नहीं, पहरेदार बदला गया। PTI के पास विजन होता तो 3.5 सालों में कुछ तो नज़र आता। कल भी माफियाज की हुकूमत थी और आज भी अरबों रुपए कमाने वालों की हुकूमत है। मुल्क में सियासत पैसे की बुनियाद पर चलती है। उन्होंने कहा, तीनों बड़ी जमातों की पॉलिसियाँ एक ही हैं। PTI का तजुर्बा नाकाम हुआ। मुल्की कर्जा 51 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वजीर खजाना आते ही IMF के पास मजीद कर्ज लेने पहुंच गए। उन्होंने कहा, हुकूमत पेट्रोल और बिजली की कीमतें मजीद बढ़ाने के लिए तैयार बैठी है। खबरदार करना चाहते हैं, हुक्मरान अवाम पर जुल्म बंद करें। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एक माह से सिसिलियन माफिया ने कानून की धज्जियां बखेरी। अवाम के साथ मिलकर आखिरी दम तक माफिया का मुकाबला करूंगा। अनोखा लाडला वजीर आला के होते हुए पंजाब पर काबिज हो गया। अनोखे लाडले ने गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। गुज़िश्ता एक महीने से जारी जो एक सिसिलियन माफिया के खिलाफ जो जबरदस्त वो कर रहे हैं, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाकर, उसके ख़िलाफ़ अगर मैं खड़ा हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आइनी और कानूनी जो इख्तियारात और ज़िम्मेदारियाँ हैं उसमें रहते हुए मैंने अभी तक कर रहा हूँ। जब तक मैं गवर्नर हूँ, जिस दिन मैं गवर्नर नहीं रहूँगा उस दिन शायद मेरे बहुत सारे जो मुझे इस वक्त कभी लिमिटेशन हैं वो ना रहें। इंशाअल्लाह ताला मैं अवाम के साथ आखिरी दम तक इस सिसिलियन माफिया का मुकाबला करता रहूँगा। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने लोकल गवर्नमेंट और देही तरक्की के आला सतह के जायज़ा इजलास में तरक्याती मनसूबे तेज़ी से मुकम्मल करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास के ज़ेर सदारत इजलास में माली अहदाफ का जायज़ा लिया गया। आज़ाद कश्मीर के 32 और मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान के 12 इंतखाबी हलकों में तरक्याती सरगर्मियों का जायज़ा लिया गया। बजट से 60 करोड़ रुपए के अखराजात हो चुके, 2 अरब 20 करोड़ रुपए खर्च करने बाकी हैं। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने तरक्याती मनसूबों पर काम की रफ्तार बढ़ाने और मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करके माली अहदाफ हासिल करने की हिदायत की। वज़ीर रेलवे और हवाबाजी साथ रफ़ीक का फैसलाबाद एयरपोर्ट का दौरा। एयरपोर्ट मैनेजर समेत मुतल्लिका एविएशन हुकाम, PIA और ASF हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी। इजलास में एयरपोर्ट के अहम अमूर और रनवे की तामीर नौ के हवाले से जायज़ा लिया। उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए जद्दा और मदीना के लिए बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने के लिए PIA इंतज़ामिया को हिदायत भी जारी की। कारोबारी बरादरी के लिए फैसलाबाद एयरपोर्ट पर कार्गो की तरसील में मज़ीद बेहतरी लाने की हिदायत भी कर दी।
कराची में आज भी मौसम गर्म रहेगा। शहर का दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, जबकि हवाएं 30 से 32 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। मौसम का अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद हमाद। जी हमाद, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल मुल्क के बेशतर शहरों में जो है गर्मी की पेशनगोई जो है वो की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। कराची में भी जो है आइंदा 24 घंटे के दौरान जो है मौसम गर्म और जो है मतलूब रहेगा। इस वक्त जो है शहर का दर्जा हरारत वो 26 सेंटीग्रेड है। ज़्यादा से ज़्यादा ये दर्जा हरारत 36 से 38 सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है और कम से कम दर्जा हरारत 30 से 32 सेंटीग्रेड जो है रहने का इम्कान है। इस वक्त जो है शहर कराची में जो है हवा जो है बिल्कुल नॉर्मल है और जुनूब जो समंदरी हवाएं शुमाल मगरिब से चलने वाली जो समंदरी हवाएं वो 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और साथ ही साथ जो है वो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 56% है। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि जुनूबी पंजाब और शहर के जो दीगर इलाके हैं जिनमें अगर हम बात करें सूबाई पंजाब, सूबाई बलूचिस्तान और सूबाई सिंध में जो है वो आइंदा आने वाले हफ्ते में जो है शदीद गर्मी की लहर पड़ेगी। कराची में भी जो है गर्मी की जो लहर में इजाफ़ा होगा, जिसकी वजह से कराची में जो है सख्त गर्मी पड़ने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि शहरी जो है वो गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए जो है वो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जो आइंदा आने वाला हफ्ता है वो कराची में जो है काफ़ी जो है गर्मी जो है वो कहर बस रहेगी। इसी के साथ साथ जुनूबी पंजाब के जो इलाके हैं वहाँ पे बारिश की भी पेशन गोई की है, जबकि कराची में जो है बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जी।